monsoon? What is monsoon? The word monsoon is derived from mosim, Arabic word mosim. राइट, मौसम को मॉनसून बुला देंगे. राइट, ओके. होता क्या था, जब अरेबियन ट्रैवलर्स आते थे तो उनको कई बार विंड्स, उनकी जो शिप्स थी उनको सपोर्ट करती थी. ठीक है, तो ये वो विंड्स थी जो कि उनके सी वॉयज को सपोर्ट करती थी. कई बार वो उसके अगेंस्ट हो जाती थी. तो उनको समझ में आया कि ऐसा एक विंड सिस्टम है जो कभी हमारे साथ में है, कभी हमसे अगेंस्ट है. ठीक है, तो व्हाट इज मॉनसून? इट इज अ विंड सिस्टम. राइट, periodic, you can say seasonal wind system, right, that reverses its direction every 6 months, isn't it? That to 180 degree, it reverses its direction at 180 degree every 6 months. 6 महीना ये आता है और 6 महीना ये जाता है, isn't it? Okay. Now, what are the various factors that are responsible for monsoon? Simply अगर मैं monsoon बोलूँ तो एक ये wind system है, right? Where winds reverse its direction to 180 degree angle every 6 months. Right, the normal direction of monsoon wind is southwesterly. How southwesterly? See, this is earth, this is equator, right? Anything which is moving in the northern hemisphere will turn towards its right. Normally what happens? There are trade winds. What is the direction of these trade winds? Southeasterly. What is the direction of these trade winds? Northeasterly. Right? We are considering that our ITCZ is this one. Right? This is our ITCZ. The belt where the two wind systems converge, that is ITCZ. Intertropical convergence zone is the zone of low pressure between these converging airs, right? Okay, what happened because of northward, apparently northward movement of sun? अभी 21 अप्रैल को, 21st अप्रैल को sun will shine over equator, equinox, right? And in some time, within some time, it will shine over Tropic of Cancer, right? Around 21st June, Uttarayan, right? On the same day we observe what? हम मनाते हैं ना कुछ, अभी योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, उत्तरायण के दिन बनाते हैं, right? So in this day what will happen? The sun rays will be directly here. If sun rays are directly hitting at Tropic of Cancer instead of equator, what will happen? This low pressure zone will also shift northward, right? That means low pressure will be northward. So then where will be ITCZ? ITCZ will be around here, like this. This is ITCZ. If ITCZ is a low pressure system, so naturally what happened at the ITCZ? Convergence of winds, isn't it? Northeasterly will be like this only, southeasterly will be like this only, and when this is 0 degree, this is southern hemisphere, this is northern hemisphere,
these wind will cross the equator. What will happen? They will turn towards right. So what will be the direction? They will turn towards their right. So it becomes south westerly. Understood? Is it clear? Any doubt in this? Okay, very good. Why they are attracted towards this? Why these winds are coming in this side? Because of the apparent movement of sun and subsequent shifting of the ITCZ in the northern hemisphere. ITCZ northerly shift कर गया, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके। तो ये जो विंड की डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्टर्ली होगी, ठीक है, ओके। It is seasonal wind, right? It changes with seasons. Okay. Now, what are the various factors that are responsible or that affect monsoon? Right? First is low pressure, right? Heating of Indian Peninsula, Thar Desert, especially Thar Desert, and Tibetan Plateau. These three things will be heated up and it creates basically a low pressure, right, in northern hemisphere. This is the first thing, right? Second thing that affect monsoon is the jet streams, right? There is a jet stream that run north of Himalayas, right? So basically this is India, right? And these are Himalayas, right? Map में थोड़ा ऊपर नीचे है, वो आप समझ लो. Let me. अब ज़्यादा साउथ में आ गया. Say this is equator, so this is India, right? This is Himalayas, right? What happened? There is a jet stream. Jet stream is upper atmosphere river of air, kind of, right? It is upper atmospheric air circulation, jet stream, that is parallel to the latitudes. ये ऊपर चलती है. नॉर्मली जो इसकी जो पोजीशन होती है वो गंगेटिक प्लेन पे होती है. एक इसका लिम्ब जो है गंगा के ऊपर होता है और दूसरा लिम्ब इसका एक तो गंगेटिक प्लेन में और एक तिब्बतन उसके वहाँ पे हिमालय के नॉर्थ से चली जाती है. ऐसे ही चलती है. अब ये क्या होती है? कोल्ड होती है, राइट? अगर कोल्ड होगा तो क्या होगा? क्या ये बरसात होने देगी? ऊपर नहीं जाने देगी. अगर कोल्ड विंड आ रही है कहीं से तो वो वहाँ पे नेचुरली बारिश नहीं होने देगी, राइट? अपर एटमॉस्फेयर में अगर कोल्ड है तो. अब होता क्या है कि इसकी पोजीशन यहाँ होती है नॉर्मली, राइट? अभी जो अगर हम देखेंगे ये इसकी पोजीशन यहाँ पे चल रही है. जैसे जैसे सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होती जाएगी, ठीक है, सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे साइन करेगा तो क्या होगा? ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है. यहां वाला लो प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है. तो शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन टुवर्ड्स नॉर्थ, शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम towards the north is another region for its arrival, right?
तीसरा रीजन, हिमालयंस के नॉर्थ में एक प्लेट्यू है यहां पे, दैट वी कॉल तिब्बतन प्लेट्यू. दिस इज वेरी हाई, रोकी, राइट, अराउंड 4300 मीटर इसकी हाइट है. रोकी प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन दिस वर्ल्ड, राइट. एंड इट गोट्स हीटेड अप बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, राइट. नीचे तो आपने देखा कि नीचे तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, बट वो एयर का जो मास है दैट विल बी पुश्ड टुवर्ड्स, यू कैन से नॉर्थ, ऊपर आएगा वो. ऊपर आके क्या होगा, जब वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर हवा पाइल अप हो जाएगी, दैट मीन इट विल क्रिएट हाई प्रेशर एट अ हाइट. जब हम सेल्स की बात कर रहे थे तो यहां से हवा ऊपर उठ रही थी, तो यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा था ना, वो हाई प्रेशर दोनों तरफ डाइवर्ज हो रही थी एयर, ये हम कह रहे थे. सिमिलरली मैं कहता हूं कि यहाँ पे जब गर्म हो रहा है तो यहाँ से हवा ऊपर उठ रही, यहाँ से हवा ऊपर उठ के से यहाँ पे जाके इसके यहाँ पे देखो, राइट, ये यहाँ पे जाके हवा पाइल अप होगी और यहाँ पे डाइवर्ज होगी फिर, क्योंकि हाई प्रेशर मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एयर, ठीक है. यहाँ से एक जेट स्ट्रीम निकलती है, ठीक है, वो इधर से आके ऐसे मूव करती है. उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट. इस जेट स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट. क्यों बनती है ये इसी टाइम पे बनेगी, ठीक है. ये जेट स्ट्रीम, अब बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन मॉनसून में अनएक्सप्लेनेबल हैं. ये भी ऐसी एक, ये समझ लो कि करामात है जो हमें नहीं समझ में, स्कॉलर्स को नहीं समझ में आई है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनकी नहीं है, ठीक है. तो ये एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये है, इसका आना अनदर रीजन है, ठीक है. सो emergence of tropical easterly jet. ठीक है. एक क्या होता है कि ये है, तो यहाँ पे आपका अफ्रीका होगा, राइट. इसी तरह से यहाँ पे मदागास्कर है और यहाँ पे केन्यन हाइज है, ठीक है. इन दोनों के यहाँ से भी एक जेट स्ट्रीम निकलती है जिसको हम बोलते हैं फिंडलेटर्स जेट. यहाँ पे हाइट से मदागास्कर प्लेट्यू वगैरह इसकी हीटिंग से यहाँ पे ऊपर एक जेट स्ट्रीम चलेगी, वो नॉर्मली इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है. उसको हम बोलते हैं फिंडलेटर्स जेट. इसका भी रोल है, ठीक है. तीसरा, सोमाली के यहाँ पे करंट आ जाता है, एक emergence ऑफ वार्म करंट, सोमाली करंट, दैट इज अनदर रीजन. ये कुछ रीजन्स हैं, ठीक है. ये रीजन्स मैंने आपको कंबाइन करके सुनाए, ये बहुत सारी थ्योरीज हैं बेसिकली, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले जो पढ़ते हैं, तो मैंने आपको कंबाइन करके दे दिया, ठीक है. क्या क्या था, एक तो लो प्रेशर रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, and Tibet. That is the first. Second, northward shifting of subtropical west jet stream, emergence of tropical easterly jet, Findlater's jet, and emergence of Somali current. Right? These are few regions that you can say that these are responsible for arrival of monsoon, right? Now, what is the course of monsoon?
when it start and how it causes rainfall. We know this is India. In the first week of June, it hits the coast, है ना, 1 जून के राउंड, 1 से 7 जून के राउंड वो हिट करती है, राइट? ओके, जून के अंदर हमारा सन कहाँ पे आ जाएगा? ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, कैंसर के पास, राइट? ओके, तो ये फर्स्ट वीक में हिट करेगी। नॉर्मली मॉनसून जो आती है वो 2 ब्रांचेज में आती है, एक अरेबियन ब्रांच, राइट, ये क्रॉस करेगी तो ये 2 ब्रांचेज में बढ़ जाती है। 2 ब्रांचेज में क्यों? क्योंकि पेनिनसुला की शेप ऐसी है, ठीक है, एक जो इधर टिकेगी और एक इधर जाएगी, अराकन योना माउंटेन्स से टकराएगी, राइट, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, राइट? इट इज फर्दर एक्सटेंटुएटेड बाय द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, पुश करेगी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इसको इस साइड, वो हवाएं इनको इधर बहा के लेके जाएगी, ठीक है। अब ये मॉइस्ट एयर है, ये मॉइस्ट एयर इंडियन कोस्ट को हिट कर रही है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, राइट? वेस्टर्न घाट से जब ये हवाएं टकराएंगी तो ये अपलिफ्ट होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, तो एडियाबैटिक कूलिंग होगी, तो दे विल cause heavy rainfall on the western coast, right? When these same winds, they will slope over the mountains, so क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगी तो गर्म हो जाएंगी और बारिश नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए मुंबई और पुणे के अंदर देयर इज डिफरेंस इन रेनफॉल। मुंबई में ज़्यादा रेनफॉल होती है, पुणे में बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मुंबई। क्यों? क्योंकि वो हवाएं जब ऊपर से नीचे ही जाएंगी, तो जब वो ऊपर जा रही थी तो वो एडियाबैटिकली कूल हो रही थी, और जब वो नीचे गई तो एडियाबैटिकली हीट हो गई, ठीक है। और हीट होने से क्या होगा, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा और वो बारिश नहीं करवा पाएगा, राइट। सो ये आपका हुआ अरेबियन ब्रांच, ये हुआ आपका कौन सा ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। ये अरेबियन ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये 2 ब्रांचेस में ये आती है, ठीक है। उसके बाद ये अरेबियन ब्रांच भी 3 भागों में टूट जाती है, एक तो साउथ में हिट करती है, एक इधर हिट करती है, और एक सीधी नॉर्थ में पैरेलल चले जाती है अरावली के लेफ्ट से, ठीक है। और ये बाद में मर्ज करती हैं दिल्ली के आसपास, राइट। कब करेंगी? ये जुलाई फर्स्ट वीक में, ठीक है। अब मैं आपको 3 सिटीज देता हूँ, कोलकाता, इलाहाबाद and Delhi. Which one receives maximum rainfall? Which one receives maximum rainfall? Kolkata, Allahabad and Delhi. How? Delhi, how Delhi? राजेंद्र नगर डूब जाता है बरसात में पाँव तक पानी बस जाता है इसलिए। कल मैंने एक चीज बताया था, यहाँ पे इनके पास सोर्स ऑफ वाटर है, सी के ऊपर से वो हवाएं आ रही हैं, ये भी सी के ऊपर से हवाएं आ रही हैं। जब सी के ऊपर से आएंगी तो वो अंदर जाती जाती अपना मॉइस्चर शेड करती हुई जा रही हैं, तो यहाँ तक जाती हुई वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएंगी। अगर दोनों मिल भी जाएंगी तो भी बहुत कम बरसात करवा पाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर इलाहाबाद में और फिर दिल्ली में, ठीक है। मुंबई पुणे का रीजन समझ गए थे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा 2 ब्रांचेस हैं मॉनसून की। अब मॉनसून जो है, अगर हम देखें, ये तो आना हो गया कि जुलाई के अंदर यहाँ बरसात हुआ। ये बेसिकली 15 सितंबर तक अप्रोक्सीमेटली, 15 सितंबर और या लगा लो आप 22 सितंबर तक अच्छी खासी रेनफॉल कराएगा।
क्यों 22 सितंबर मैंने डेट बताई, 15 सितंबर 12 सितंबर क्यों बताई मैंने आपको? क्योंकि ये इक्विनॉक्स आ जाएगा, सन वापस इक्वेटर पे आ चुका है और इसके बाद सन जो है साउथवर्ड मूव करेगा। जब ये साउथवर्ड मूव करेगा तो ये हवाएं भी वापस मूव करना शुरू कर देंगी। ठीक है, ये हवाएं वापस मूव करना शुरू करेगी। तो अब तो हमारी साउथ वेस्ट मानसून आ रही थी, ठीक है, इस तरह से मानसून आ रहा था। तब क्या होगा, हमारी विंड्स का सिस्टम बदल जाएगा, विंड्स ऐसे मूव करेंगी। ठीक है, दैट वी कॉल रिट्रीट इन मानसून, राइट, रिट्रीट इन मानसून। ठीक है, अब ये रिट्रीटिंग मानसून जो है ना क्या करती है, अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड हो जाएंगी, क्योंकि हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन तो नॉर्थ ईस्टर्ली है ना। अब नॉर्थ ईस्टर्ली सर्कुलेशन अगर हुआ तो क्या होगा, देखो है ना, तो इस एरिया में अच्छी खासी बारिश करवाएंगी। देखते होगे ना, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। तमिलनाडु कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में अच्छी खासी बारिश होती है। तो कैन वी से, याद करो कल मैंने AS की बात की थी, ट्रॉपिकल समर ड्राई। यहाँ पे समर में बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि हवाएं कैसे जा रही थी, ये जा रही थी, राइट, ये वाली हवाएं, ये वाली तो इसके पैरेलल चली गई ना, और बारिश इधर से आ रही थी। यहाँ पे रिलेटिवली ड्राइनेस था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फिर भी ठीक था, तमिलनाडु में ज़्यादातर नहीं होती है, राइट। यहाँ पे जब वापस रिट्रीट करेगा मानसून तब वो बारिश वहाँ पे होगी। ठीक है, वहाँ पे विंटर में रेनफॉल होगी। एक और सिस्टम होगा वापस, जब मानसून रिट्रीट कर रहा है तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वापस आ जाएगी, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन्स पे। और ये जब वापस आएगी ना, तो इस टाइम पे कैस्पियन सी के अराउंड क्या हो रहा होता है, वहाँ पे एयर मासेस बन रहे होते हैं। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन सा बन रहा होता है वहाँ पे, और वो टेम्परेट साइक्लोन से कुछ मॉइस्चर पिक करके और कुछ कैस्पियन सी से मॉइस्चर पिक करके वो हिमालयाज की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर के अंदर स्नोफॉल होगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का इस पार्ट में बारिश होगी, जिसको हम बोलते हैं मावट। क्लियर, चीजें समझ में आ गई कैसे मानसून होता है। और अराउंड 15 दिसंबर के अराउंड, और ये कह लें कि हम 21 दिसंबर के अराउंड ये कंप्लीटली रिटर्न कर जाता है, क्योंकि 21 दिसंबर को क्या होगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शाइन करेगा। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा मॉनसून का सर्किल है, राइट, अराइवल ऑफ मॉनसून एंड रिट्रीट ऑफ मॉनसून। ठीक है, इज इट क्लियर, मॉनसून सीजन कैसे मॉनसून चलता है? ओके, नाउ बेसिकली व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून? ओके, सो क्या बात कर रहे थे हम, ये हमारा मॉनसून का सिस्टम है। अब मॉनसून के बेसिस पे अगर हम देखें कि हमारा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सिग्निफिकेंस क्या क्या है बताओ मॉनसून का? एग्रीकल्चर, वेरी गुड, और ये यूनिक क्लाइमेट बनाता है जिसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलेंगे, है ना। तो उसी को हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
कल हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे क्योंकि हमारा पर्पस जो है क्लाइमेट को समझना था, दैट वाज जस्ट ए कॉन्सिक्वेंस की हमें समझना था, क्योंकि हमें इंडियन जो ज्योग्राफी है वो हम बाद में करेंगे ही। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा बताओ? ओके, वाटर का रिफिल हो जाएगा, और अब बात करते हैं ये जो मॉनसून जो है, हम तो इंडियन मॉनसून को समझा है हमने कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो कहाँ कहाँ मिलता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया में मिलता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। यहाँ का नॉर्मली टेम्परेचर जो है मॉनसून क्लाइमेट में 18 डिग्री से ऊपर रहता है नॉर्मली, राइट। समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा सकता है 40-45 तक, और विंटर में 15 से 30 के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगह पे बहुत हैवी रेनफॉल हो सकती है, जैसे चेरापूंजी और माउसिनराम, राइट। कौन सी जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है? देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस एंड विच प्लेस रिसीव मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल। माउसिनराम एंड चेरापूंजी पता करना कौन कौन सा, और वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है? वहाँ की हिल्स की लोकेशन ऐसी है कि हवाएं वहाँ अंदर तो आ जाती हैं और वो वापस नहीं जा सकती जब तक कि पूरा मॉइस्चर शेड ना कर दे, ठीक है। वैली लाइक लोकेशन है, तो वहाँ पे अगर हवाएं फंस गई तो वो वहीं पे बरसात करानी पड़ेगी उनको, ठीक है। वो हवाएं, वो कहते हैं कि आ तो अपनी मर्जी से जाओगे लेकिन मेरी मर्जी से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वह ना पुरानी पिक्चरों का डायलॉग होता था, यहाँ लोग आते मेरी अपनी मर्जी से हैं और जाते हमारी मर्जी से हैं, और फिर चाबी फेंक देते हैं, है ना। तो ये वही वाला है, ठीक है। सो इसमें किस तरह का बारिश हो रही है हमारी मेनली मानसून में? मानसून में ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। याद आया ओरोग्राफिक रेनफॉल? हमने किया है रेनफॉल ओरोग्राफिक? नहीं किया है। रेनफॉल 3 तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक दैट मीन्स कोई ओरोग्राफी, कोई माउंटेन है ना, जैसे ये माउंटेन है, ये हवाएं आ रही हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्टेकल these winds are forced to move up, right? This orography is leading to upliftment of this air, that is why it causes rainfall. यहाँ पे बादल बन जाएंगे बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, एडियाबैटिक कूलिंग हो रही है ना, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, और ये हवाएं जब ऐसे पास करेंगी तो इधर एडियाबैटिक हीटिंग हो जाएगी। तो इस साइड आप अपना मुंबई वाला लगाओ, इस साइड आप अपना पुणे वाला लगाओ, ठीक है। ये एक टाइप की रेनफॉल है। दूसरी तरह की रेनफॉल होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है कि एक जगह पे इंटेंस हीटिंग, सोलर रेडिएशन के कारण इंटेंस हीटिंग हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी, राइट। बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी लो प्रेशर हियर, ठीक है। और ये जो ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो ये कूल हो जाएगी और बादल बनाएगी, ठीक है। तो ये रेनफॉल करा देगी। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शन, राइट, नॉट कन्वेंशनल। बहुत सारे लोग कन्वेंशनल पढ़ जाते हैं इसको, कन्वेक्शनल, ठीक है। और तीसरा है फ्रंटल, जो फ्रंट्स के अराउंड रेनफॉल हो रही थी, वो है फ्रंटल टाइप ऑफ रेनफॉल। ये 3 तरह की रेनफॉल होती है, समझ गए? ओके। अब यहाँ पे जो मॉनसून में कहाँ की होती है, किस तरह की होती है?
ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल प्राइमरीली होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है? तो मॉनसून क्योंकि पूरी साल तो गीला नहीं रहता है, कुछ टाइम ड्राई आता है, कुछ टाइम वेट आता है। जब ड्राई होता है तो उसमें क्या होता है, ट्रीज जो है अपनी लीव शेड करनी, क्योंकि वाटर डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के जो फॉरेस्ट हैं उनको हम बोलते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब क्या है कि हाँ, कि वहाँ पे शेड कर देते हैं अपनी लीव्स को, वो डेसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे जैसे कि केरला वाला जो हम कोस्ट देख रहे थे, ये वाला जो रीजन था, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में ये वाला रीजन था जहाँ पे ये हवाएं आ ही रही थी, वहाँ पे भी कुछ जगह पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिल जाता है, बट ज़्यादातर इंडिया के अंदर, इंडिया के मेनलैंड में यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलेंगे, जैसे साल, टीक एटसेट्रा, ठीक है। ओके, और जैसे जैसे हम जाएंगे बाहर और वेस्टवर्ड, यहाँ पे आपको कौन सा क्लाइमेट मिलेगा? थोड़ा सा सवाना टाइप, और बिल्कुल वेस्ट में जाके डेजर्ट टाइप क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चरली काफ़ी सूटेबल लैंड है, मॉनसून एरियाज काफ़ी सूटेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग हमेशा लैंड हंग्री होते हैं, उनको लैंड चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल लैंड है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा होगा मॉनसून लैंड्स में। मेन क्रॉप कौन कौन सी ग्रो करते हैं? राइस मेनली ग्रो होता है, ठीक है। ओके, अदर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, और क्रॉप्स क्या हो सकता है? जूट हो सकता है, शुगर केन प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, कमर्शियल क्रॉप्स में लाइक कॉटन भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। ये क्रॉप्स यहाँ पे होती है। ओके, प्लांटेशन में टी और कॉफ़ी की भी अच्छी इंडस्ट्री चलती है यहाँ पे मॉनसून लैंड्स में, ठीक है। लंबरिंग के लिए यहाँ पे टीक बहुत इंपॉर्टेंट एक वो प्लांट है, जो कि मेनली बर्मा में, अगर आपको पता हो कि वाई बर्मा वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, सो वन ऑफ द रीजन वाज टीक प्लांटेशन। वहाँ पे टीक बहुत ज़्यादा था, और उनको टीक के रिसोर्सेज चाहिए थे। क्यों? क्योंकि उनको रेलवे की लाइन जो बिछाने में जो बीच में लकड़ी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं रेलवे स्लीपर, वो चाहिए थे। रेलवे स्लीपर बनाने के लिए टीक की लकड़ी बहुत मजबूत है, वो चाहिए था, इसलिए उन्होंने किया था। और ट्री जैसे मैंगो, साल, एकेसिया, यूकैलिप्टस, बनियान, नीम, ये सब प्लांट्स भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में इसको जूम बोलते हैं, राइट। सेंट्रल इंडिया में इसको पोडू बेवार बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर में हम फिर से मिलेंगे।